चाहता हूँ कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर का हमारा हीरो, जम्मू कश्मीर का बेहतरीन खतीब, जो ऑल वर्ल्ड माना हुआ खतीब अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, अल्लाह पाक उसकी उम्र में बरकतें करे, उसने जब बात में एक ही लफ्ज कहा था कि मेरे नबी के खिलाफ, मेरे नबी की शान के खिलाफ जो जुबान निकलेगी वो काट दी जाएगी, जो हाथ उठेगा वो उंगली काट दी जाएगी। इसी बात पर 2 साल वो जेल भुगत के आए हैं, मगर इस अपने चाचा को क्यों हुकूमत ने संभाल के रखा हुआ है? ये 2 उसके साथ आगे एक बात मैं गुजारिश करूं, हमारे हिंदुस्तान का चोटी का आलिम मुफ्ती सुलेमान لبیک لبیک یا رسول اللہ نبی کی ایک سزا مستعین نبی کی ایک سزا بولو بولو کیا چاہیے مستعین نبی کا سچ چاہیے بولو بولو کیا چاہیے مستعین نبی کا سچ چاہیے بولو بولو کیا چاہیے مستعین نبی کا سچ چاہیے بولو بولو کیا چاہیے مستعین نبی کا سچ چاہیے مستعین نبی کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا مستعین نبی کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے رکھو, اوپر رکھو, اوپر پیچھے نہیں, اوپر رکھو. اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. تمام نوجوان حضرات سے یہ گزارش کروں گا خاموشی سے تھوڑی دیر یہاں کھڑے رہیں. آج ہم ہندوستان کے اس خبیث ملعون سیاہ دل سیاہ چہرہ گندی زبان سے نکالے گئے الفاظ کے جو ہے وہ مذمت میں بڑی مبارکباد پیش کروں گا اپنے نوجوانوں کو. اس گستاخ رسول نرسنگا نند نے ایک بار نہیں 2-3 بار وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر چکا ہے, اور اب اس نے یہ تیسری مرتبہ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے. ہم نے ملک کے آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے, ہم نے کسی مندر کے خلاف یا مندر کے پجاری کے خلاف بات نہیں کی ہے. ہم اگر میدان عمل میں آ جائے ہیں تو صرف اور صرف اپنے نبی کی عزت و ناموس کی خاطر آئے ہیں, اور ہمارا مال, ہماری جان, ہماری اولاد اور ہماری نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ایک مرتبہ قدم رکھا ہے اس مٹی پر بھی ہزاروں مرتبہ قربان ہو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے یہ کہا ہے, معاذ اللہ وہ الفاظ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کے غیر مسلموں کی بیٹیوں کے اوپر بھی شفقت کے ساتھ دست مبارک کو رکھا ہے, اور حضور نے امن کا پیغام دیا ہے. لہٰذا ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم ملک کے اندر کسی طرح کا کوئی انتشار پھیلانا نہیں چاہتے ہیں. جو یہ لوگ ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہمارے جو انہوں نے دل دکھائے ہیں اور ملک کے حالات یہ جو لوگ خراب کر رہے ہیں, ہم گزارش کریں گے حکومت ہند سے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے, اور ہم اس کے اوپر بھی متفق نہیں ہیں کہ اس کے اوپر FIR درج کی جائے. ہم اس کے اوپر بھی متفق نہیں ہیں کہ اس کے اوپر PSA لگایا جائے, بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس حرامی ابن حرامی کو سر عام پھانسی کی سزا جذبات کو سلامت رکھے, تاکہ آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی میدان عمل میں آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہ کر سکے. ہم اپنے نبی کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں, اور ہمارا خون کا ایک آخری قطرہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر قربان ہے. اور میرا جذبہ تو یہاں تک تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے, میں اسی کو لے کر کے یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھا کہ میں اور میرا بیٹا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو جائیں گے, تاکہ کل قیامت کے دن سرکار یہ تو کہیں کہ کوئی نہیں تھا مگر ایک بندہ تو میدان عمل میں نکلا تھا. مسلمانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہماری غیرت کہاں مر گئی ہے, ہم کہاں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہماری ذات پر حملے ہوئے, ہماری جو ہے ہمارے ملک پر حملے ہوئے طرح طرح کے, ہم نے آج تک برداشت کیا. لیکن جب بات ہمارے پیغمبر کی آئے گی, جب بات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئے گی, تو ہم ہر چیز پیچھے نہیں رہیں گے, بلکہ میدان میں اتر کر کے انشاءاللہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار انشاءاللہ. برادران ملت اسلامیہ, السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ. پہلے آپ تمام نوجوانوں کو میں بہت بہت مبارک دوں. اللہ پاک آپ کی تمام تھوڑا سائڈ دے, پیشنٹ ہے جذبات کی سلامت رکھے. ارے اس کو کہو سائڈ سے نکل جائے گاڑی لے کے. حاجی محبوب صاحب سے بیان سنا, سید صاحب سے بیان سنا, اور مزید کہنے کی گنجائش ہوئی. چند باتیں میں آپ کو سامنے گزار کروں گا. چند باتیں گوش گزار کروں گا کہ جب یہ معاملہ ہمارے سامنے ہمارے ملک کے اندر ایک گستاخ رسول نے, ایک ناپاک اور نجس ذہن نے اپنے دل کی نجاست کو, غلاظت کو یا میڈیا کے حوالے کیا اور دنیا نے اس کو پڑھا, تو جمعۃ المبارک پر اس کی بڑی شد و مت کے ساتھ پورے ملک کے اندر باقاعدہ احتجاج ہوئے, اور علماء کرام نے اپنے خطابات کے اندر مذمت کی. ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے مرکزی امام اور خطیب مفتی فاروق مصباحی صاحب نے جو کچھ کہنا تھا کوئی قصر اس میں نہیں چھوڑی, اور اس کے ساتھ ہی جو جمعے کا میرا بیان تھا
जिन्होंने सुना है उनको पता है। और साथ ही जिस दिन हमारी मीटिंग बंगला मस्जिद मदीना में हुई और सैयद साहब सुबह सुबह मेरे पास आए और बड़ी दर्दनाक लहजे में इन्होंने एक बात कही। मैंने कहा फौरी तौर पर मीटिंग कॉल करो। सैयद साहब ने अपनी मस्जिद में मीटिंग बुलाई, हम सारे वहाँ बैठे, वहाँ हमने एक प्रेस रिपोर्ट भी दी। उसके साथ ही हमने ये तय किया कि कल बरोज़ एतवार सुबह 9 बजे जितनी भी मजहबी क़यादत है, जितनी सियासी क़यादत है, इनको बुला लिया जाए और उनको मशावरत में शामिल करके और फिर एक जानदार तरीके के साथ मजम्मत की जाए। और वो मुख्तसर सी कॉल थी हमारी सरसरी, उस पर हमारी तीनों तहसीलों के मेंढर, मनकोट, बालाकोट के उलमाए किराम जिम्मेदार हजरात मस्जिद में हाजिर हुए और हमारी सियासी कायदीन भी हमारे पास आए और कुछ वकला भी हमारे पास आए। मस्जिद में बाकायदा 2, 2.5, 3 घंटे हमारी वो मीटिंग चलती रही और बाकायदा अपने अपने बयान सबने दिए। फिर एक एप्लीकेशन लिखी गई FIR के लिए और फिर वहाँ एहतजाजी तौर पर हम सारे आकर आप पुलिस स्टेशन आए और वो आकर हमने एप्लीकेशन यहाँ पुलिस स्टेशन हवाले की और वो इस वक्त तक उसकी हमें FIR कापी नहीं मिली है। आज दोबारा मैं आप नौजवानों की वसातत से और उलमा की वसातत से SHO साहब से कहूँगा कि उस FIR की कापी में देर नहीं करनी है, इसलिए कि कल शाम को हमने वो कापी मांगी थी। उसके बाद हम यहाँ के जो आला मजिस्ट्रेट हजरात SDM साहब कानूनी तौर पर हम उनके पास गए और बाकायदा उन्होंने हमारी बात की सराहना की कि हम आपका मुतालबा बाकायदा ऑनलाइन ऊपर भेजेंगे। ये बात दफ्तर में बैठ के कल हुई है और मजीद हम इस चीज़ में बैठ के मशावरत कर रहे थे कि हमने ये बाजार की रैली कब निकालनी है, मगर आपके जज्बात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हुए। आपने हमें नहीं देखा कि इन्होंने फैसला क्या किया है, आपके जज्बात का हम आपको मुबारक देते हैं। मगर साथ ही मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो आदमी अपने कायद के मुताबिक चलता है वो अक्लमंद गिना जाता है। इसलिए आप जब उलमा को रिजेक्ट कर दोगे, सियासतदानों को, हुक्मरानों को रिजेक्ट कर दोगे, नतीजा ये निकलेगा आपकी क़यादत कौन करेगा, आप आगे कैसे चल सकोगे। इसलिए कि सरकार की हदीस है, जो कौम अपने कायद के खिलाफ चले वो कौम कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा आपकी क़यादत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। इसलिए कि मैं बाबांगे दो लिए कहूँगा, अगर इस मनसब के लिए अल्लाह ने चुना है जिन लोगों को और जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, अगर वो मज़हब इस्लाम की क़यादत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा क़यादत। इसलिए आपको भरोसा होना चाहिए, जहाँ हम हलवा खाते हैं हम उसका असर भी दिखाते हैं, समझे नहीं, हलवा हमारे मुकद्दर में है, खाते हैं। और साथ ही मैं गुजारिश करूँगा कि मुसल्ले के ऊपर, खिताबत के ऊपर जो लोग मनसब पर हैं, आज आपने देखा सियासत की कुर्सियों पर जितने लोग यहाँ इलेक्शन लड़े हैं, आप लोगों ने उनका साथ दिया। किसका साथ दिया? जो आपके मन में आया उसका साथ दिया। बोलो जिसको आपने वोट दिए, आप उसको अपना कायद मानते हो या नहीं मानते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क की सियासत हमारे लोग, हमारे कलमा पढ़ने वाले नबी के गुलाम जो हैं वो हमारे सियासी कायद हैं। इसलिए हमने मुश्तरका तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। जो मेरी चिट्ठी थी उस दिन जो मीडिया के उसमें हवाले की गई थी, उसमें मैंने पहले लिखा था तमाम मजहबी कायदीन, सियासी कायदीन और जितने हमारे समाजी कायदीन हैं वो कल एतवार को 9 बजे मस्जिद में हाजिर हो जाए। ये एक तरीकाकार होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसके तहत कौम चलाई जाती है। आपको ये पता है, हमें तल्ख तजर्बे हैं। जब हमें एक दफा काल मस्जिद से दी और कोई शर पसंद लोग बीच में शामिल हुए, हमारे प्लान में, हमारे एजेंडे के अंदर ये था कि यहाँ से निकलेंगे बस स्टैंड पर हमने जाके स्पीचें करनी है और वहाँ जाके उस खबीस का पुतला जलाना है जिसने कुरान की तौहीन की थी। जो शर पसंद लोग थे उन्होंने लोगों को यहाँ से धकेला और कहाँ चले गए, वीडियो ऑफिस के पास, और 3 बंदे मुसलमान ही कत्ल हो गए, नुकसान हुआ। और उसका रद्द अमल यह हुआ कि मुफ्ती साहब के और मेरे खिलाफ इस बाजार के अंदर जुलूस निकला, ये कातिल हैं, ये कातिल हैं। हमें तक तजर्बा है, मैं इसलिए आपको ठोक के ये बात कहना चाहता हूँ। मगर उस वक्त में आजकल के जिम्मेदार अफसरान, SHO साहब
डीएसपी साहब कान खोल के सुन ले, इतने बड़ा शिद्दत के साथ एहतजाज हुआ था। तमाम दफातर मुसलमानों ने अपने असासे जला दिए, अपने रिकॉर्ड जला दिए, मगर उस मुश्किल वक्त के अंदर भी किसी जज्बाती नौजवान ने किसी हिंदू की दुकान पर पत्थर तक नहीं मारा, किसी हिंदू को धक्का तक नहीं मारा, किसी को ठेला तक नहीं मारा, तू करके नहीं कहा। ये मैं मेंढर के मुसलमानों को दाद देता हूँ। जज्बात में भी इन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखे हैं और मुझे आज भी यकीन है कि ये जज्बात, ये नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मुझे बोलना आता है, मगर वहाँ से लेके यहाँ तक मैं वुज़ू की तैयारी कर रहा था, नमाज का टाइम है और सुबह सुबह ये जो लड़के हमारे पास आए हैं, ये बाकायदा मेरे पास आए, ये झंडा भी हमने इनको दिया और मैंने कहा आप करना, कोशिश करना बेटा, जज्बात के अंदर नहीं बल्कि कंट्रोल के अंदर करना, हम आपके साथ हैं। ये प्लान के साथ सुबह निकले और ये लड़के जो हैं ये यहाँ ट्यूशन सेंटर के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि देखो इतने दिन हो गए हैं और उस खबीस को किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, क्योंकि बात जब सामने आती है कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। इसलिए मैं हुकूमत हिंदुस्तान को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर का हमारा हीरो, जम्मू कश्मीर का बेहतरीन खतीब, जो ऑल वर्ल्ड माना हुआ खतीब अब्दुल दाऊदी साहब, अल्लाह पाक उसकी उम्र में बरकतें करे, उसने जज्बात में एक ही लफ्ज कहा था कि मेरे नबी के खिलाफ, मेरे नबी की शान के खिलाफ जो जुबान निकलेगी वो काट दी जाएगी, जो हाथ उठेगा वो उंगली काट दी जाएगी। इसी बात पर 2 साल वो जेल भुगत के आए हैं, मगर इस अपने चाचा को क्यों हुकूमत ने संभाल के रखा हुआ है? उसके साथ आगे एक बात मैं गुजारिश करूं, हमारे हिंदुस्तान का चोटी का आलिम मुफ्ती सुलेमान अजहरी, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, वो आज भी जेल के अंदर है और उसकी गलती किया है। आज भी उसकी स्पीच को अगर नेट से निकाला जाए वो कानून के खिलाफ नहीं है, वो मुल्क के आइन के खिलाफ नहीं है, उसने अपने मजहब का दिफा किया है, अपने ईमान का सबूत दिया है और उसको उठा के बदमाशों ने जेल में डाल दिया है। मगर ये जो बकवास कर रहे हैं और पूरे मजहब को नहीं, मैं एक बात खोल के कहूँगा आपको कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा हमारा वतन है, मगर साथ ही ये आप अंदाजा लगाए मुल्क के हुक्मरानों को ये चाहिए और होश के कान लेने चाहिए कि 60 से ऊपर मुस्लिम कंट्रियां हैं और ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं ठेस पहुंचाया, आपने अरबों खरबों मुसलमानों के दिलों को चीरा है। ये मामूली बात नहीं है और ये ना कहना हिंदुस्तान में आग लगेगी, आग लगेगी तो ऑल वर्ल्ड आग लगेगी। मेरे नबी की शान के खिलाफ कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। और आपने देखा होगा हमारे जितने भी मसलक के जितने इदारों के लोग हैं, चाहे वो किसी सुन्नी है, वहाबी है, शिया है, आपने सब पहले एक प्लेटफार्म पर देखे हैं, इसलिए कि सब नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई पीछे रहने वाला नहीं है। ये भूल जाए अपना ख्वाब, अपना झूठा ख्वाब कि यह तकसीम है, हम कोई तकसीम नहीं है, नबी की शान में कोई तकसीम नहीं है। अब आखिर में चूंकि हमें नमाज का टाइम है, नमाज की तैयारी करनी है, आपके जज्बात को बहुत 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 सैकड़ों नहीं हजारों लाखों मुबारकें बेटा आपको कि आपने हमारे हौसले बुलंद किए हैं। और इसलिए बुलंद किए हैं, हाजी साहब ने एक लफ्ज कहा बहुत प्यारा लगा, वो ये लगा कि वो आदमी जो जज्बात में होश खो बैठे उसके जज्बात न अल्लाह को पसंद न नबी को पसंद, समझे नहीं? इसलिए जोश में होश कायम रखना यही बहादुरी है। आपने पूरे बाजार का रौंड लगाया, आपने कोई खिलाफ वर्जी कानून की नहीं की, जज्बात आपने का इजहार कर दिया। अल्लाह ताला आपके जज्बात में और बरकतें अता फरमाए। जब वक्त आएगा कोशिश करना, जब भी हम कॉल देंगे ऐसी कॉल नहीं होगी, कॉल वो होगी कि अगर कोई रेडी वाला रेडी लगा गया मुझे मौलवी सुल्तान लगे।